Hello, hello everyone. Hi Manika. Hi Niharika. Hello Raksha. We will wait for one more minute. Let others join. Hi Raksha. Hello Rekha. Welcome. Welcome all of you. Okay, let's start. So, how many of you have never felt guilty in your life? Is there any moment? Please do let me know in the comment box. आज तक क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने गिल्टी फील नहीं किया है? यू नो वॉट, गिल्ट और वुमेन का बहुत ही पुराना नाता है. इट्स नॉट स्पेसिफिक अबाउट वुमेन, इट्स अबाउट एवरी वन, बट वुमेन के साथ थोड़ा सा स्पेशल रिलेशन है गिल्ट का. सो प्लीज डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स. हेलो प्रिया, कैसे हो आप? यस, परफेक्टली सेड मनिका. इट्स अ डेली फीलिंग. ट्रू, या. एंड यू ऑल नो, एक रिसर्च के अकॉर्डिंग पता किया है. इट्स अ रिसर्च, इट वाज अ रीसेंट स्टडी डन in the Journal of Health and Social Behavior. According to that, women tend to feel 30 to 40% more guilty than men. 30 से 40% women ज़्यादा गिल्टी फील करती हैं men से. कुछ तो रीज़न होगा ऐसा, राइट? सो आज इसीलिए मैंने ये इनिशिएटिव लिया है टू जस्ट एक्सप्लोर अबाउट दिस रिलेशनशिप of guilt and women, and that's why I named it as Women and Guilt Tamasha. So ये मेरी एक सीरीज है जो मैं लेकर आई हूँ, and today is the episode 1. और we will be discussing guilt in detail on various dimensions. बहुत सारे dimensions होते हैं guilt के, मनी का, मॉम गिल्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. So we will explore that in detail in further sessions, and I will be inviting subject matter experts, the pronounced trainers and coaches of this industry, just to guide me and you and every other women out here, especially the Indian women. Yes. So that will be a very wonderful journey, and I welcome all of you and I especially invite all of you to join this journey with me. Hi Annie, how are you? Thank you all of you from bottom of my heart for joining this live. So let's quickly start. Okay? So what is guilt? Can anyone let me know in the comment box, what do you understand with guilt? What is your own definition of guilt? I'll wait for the answers for a few seconds. Good to know that, Annie. You are doing great. Yes, so guilt is basically a self-conscious emotion. It's about ये जो हमारे अंदर से ही एक emotion निकलता है, and it's a very conscious thing. We know that we are guilty. Yes, feeling bad after doing something you like, right? Hi Serena, how are you?
Thank you so much for joining in. Yeah, so we were discussing about what is exactly guilt. So guilt is a self-conscious emotion that involves negative feelings, negative evaluation of the self. हम ये सोचते हैं कि मेरे अंदर कुछ गलत है, मैं ही कुछ गलत कर रही हूँ, राइट? ये अंदर से इमोशन आता है, राइट? सो इसकी वजह से होता क्या है, वी फील डिस्ट्रेस्ड, वी फील एंजाइटी क्रिएट होने लग जाती है अंदर से, राइट? या फिर वी फील दैट वी हैव फीलिंग्स ऑफ फेलियर, दैट आई एम अ फेलियर, आई एम नॉट अ गुड पर्सन, राइट? सो बेसिकली if I would tell you that what is the basic difference between guilt and shame, because guilt and shame are correlated often, right? They are considered as one or the other thing, same thing, right? But it have a small difference, a minor difference. Guilt is basically, guilt जो होता है हमारा something that is when we have that feeling that I have done something wrong, or maybe I have caused hurt, given hurt to someone, or injury किया है मैंने किसी को, and I feel bad about it, right? This is guilt. But unconsciously what happens most of the times that we go into that deep thing, अंदर में इतना deep चले जाते हैं कि over a period of time जब guilt accumulate होता रहता है same particular incidents को लेकर या particular relation को लेकर, then it converts into shame. And that shame thing is a very the extreme negative side of guilt. बहुत ही ज़्यादा उसमें चले जाते हैं हम कि oh my god, I'm not a good person, how can I do that, right? Hello everyone for joining in, thank you so much. Yeah, so what I consider that both are guilt and shame, both are considered as cousins. They come hand in hand, right? Yes, when you are ashamed of yourself, yes, that becomes that's the scene that when your guilt becomes the shame. Okay, so guilt is basically a wasted emotion. It's not you, it should not be there, but it automatically comes. It's just an emotion. I understand, एक emotion है, सभी को आता है, but उसके भी दो sides हैं, right? If it's a natural guilt, sometimes it helps us to understand कि कुछ मैंने गलत किया है and I need to change, I need to improvise on that. मुझे उसको मैं अगर future के लिए मैं I'll not repeat that mistake again, right? That is the scene. This is the positive guilt, positive side of the guilt. Okay, but the negative side, what happens when you feel that something what I have done, who am I, when you take this, हम अपने ऊपर सोचने लग जाते हैं कि शायद ये मेरी वजह से ही ऐसा हो रहा है, I am the culprit, I am responsible for that. Then it becomes the toxic guilt, because उसके बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं, फिजिकल इफेक्ट्स भी होते हैं, सिम्टम्स वो हमारी बॉडी शो करती है, दैट आई विल डिस्कस इट इन फ्यू मिनट्स, एंड साइकोलॉजिकल सिम्टम्स भी होते हैं उसके बहुत सारे. सो द मेन क्वेश्चन इज दैट हाउ डू वी शो गिल्ट. हम सभी गिल्ट शो करते हैं, तो हम कैसे पहचाने? क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें पता ही नहीं चलता, वी आर अनअवेयर ऑफ दैट थिंग, ऑफ द फैक्ट दैट वी आर becoming guilty, we are feeling guilty of something, and कुछ ना कुछ माइंड में घूमता रहता है, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, why I am feeling like this, right? So that is the thing. So how do we show guilt generally? Can any one of you give me the answer? How do we show our guilt? Please keep this session इंटरैक्टिव, बहुत ज़्यादा इंजॉयबल रहेगा अगर हम 2 वे रखेंगे इसको, कम्युनिकेशन को, एंड दैट्स द पर्पस ऑफ कमिंग लाइफ, राइट? सो हाउ डू वी शो गिल्ट? देयर आर few pointers that
यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड इन योर सेल्फ, और या फिर किसी और के साथ भी आपने देखा होगा कि जब भी हम गिल्टी होते हैं हम ओवर जस्टिफाई करते हैं अपने आप को कि नहीं नहीं नहीं, मेरी वजह से नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, राइट? तो हम एक्सप्लेन करते हैं, वैलिडेट करने की कोशिश करते हैं. देन अदर वे हो सकता है कि या तो हम बहुत एंशियस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में चले जाते हैं, ओवर थिंकिंग करने लगते हैं. yes Annie, keep saying, we keep on saying sorry, we keep on apologizing. Yes, compensating extra, wonderful. Over giving, like avoid doing or liked activity, very good. Yes, by expressing, yes, giving excuses, because हम क्या करते हैं, we try to avoid the situation, right? That is the case. Yes, thank you so much for your wonderful answers. See, this is a very common thing, सबके साथ ही होता है. Hi coach Leena Vadwa. Hi, thank you for joining in. Yeah, so these are the few of the things, that few of the ways that how do we show guilt. Now the thing comes that what are the types of guilt, because I'm going to describe it in detail, that's why I'm discussing it. What are the types of guilt? So there are basically two types of guilt, as I discussed it earlier also, that natural guilt, that is a good guilt, it's the positive side of the guilt, or we can consider it as a healthy guilt. Hello Devika. Yes, so natural guilt or healthy guilt. So ये क्या होता है, दिस इज अ वेरी नॉर्मल रिएक्शन. जब भी कुछ हमने मिस्टेक कर दिया है या फिर हमने किसी को कुछ गलत बोल दिया है, सो इट हैपन्स कि हमें वी फील बैड अबाउट आवर सेल्फ. इट इज अ वेरी नेचुरल रिएक्शन. यू फील हर्ट कि मैंने ऐसा क्यों कहा. हाय नेहा, थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन. हाउ आर यू? Okay, so we were discussing about types of guilt. So first is natural guilt or healthy guilt. So it is a very normal reaction and feeling of regret कि why did I do this? मैंने ऐसा क्यों किया किसी के साथ, right? मैंने किसी को hurt कर दिया, या मैंने कुछ तो ऐसा सोसाइटी का नॉर्म था या कन्वेंशनल रूल था that I have broken. We feel bad about it. Right? It is or sometimes it's the positive side is of this type of guilt is कि we can learn the lesson and move on. That's okay. अब मैं future में ऐसा कभी नहीं करूँगी. And that's it. The guilt finishes. It's very temporary phase. It's a very temporary time duration कि ठीक है, थोड़ी देर के लिए हुआ, 1-2 दिन के लिए हुआ, 1-2 घंटे के लिए हुआ, and we move on. So यहाँ तक तो ठीक होता है guilt, but the actual problem arises when your guilt becomes toxic, right? So yes, so toxic guilt जब हो जाता है तो what happens कि it comes from a sense of not being a good person. हम अपने आप को ऐसा बिलीव करवा लेते हैं कि आई एम नॉट अ गुड पर्सन, आई एम अनडिजर्वेबल, आई डोंट डिजर्व दिस, आई डोंट डिजर्व टू बी हियर, मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए, या मुझे उससे बात नहीं करनी चाहिए, या आई शुड नॉट गो इनटू दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, उन पर्टिकुलर लोगों से नहीं, मुझे कट ऑफ कर लेना चाहिए, राइट? योर बॉडी स्टार्ट्स शोइंग सिम्टम्स. ओवर थिंकिंग रहता है, बॉडी में पेन होता है, बैक एक रहता है, फिजिकल सिम्टम्स आने लग जाते हैं. वी कीप ऑन ब्लेमिंग आवर सेल्फ, राइट? एंड वी थिंक दैट द अदर पर्सन इज अपसेट एवरी टाइम बिकॉज ऑफ मी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रियलिस्टिक सिचुएशन. हमें नहीं पता कि उसकी जो इशू है, वो अपसेट है, वो क्यों है. बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी ब्लेम आवर सेल्व्स कि उसकी जो सिचुएशन है, आई एम द कल्प्रिट, मेरी वजह से हो रहा है ये सब उसके साथ. क्योंकि कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस में भी हुए होंगे आपके 1 बार 2 बार, एंड यू हैव क्रिएटेड दैट बिलीफ कि जब ऐसा होता है तब ये अपसेट होता है, एंड इट इज बिकॉज ऑफ मी. सो वी टेंड टू ब्लेम आवर सेल्फ एंड समटाइम्स अदर्स ऑल्सो कि इसकी वजह से ऐसा होता है, उसकी वजह से ऐसा होता है, अदरवाइज आई एम अ गुड पर्सन.
बट जब जब ऐसा होता है तब मुझे गुस्सा आ जाता है, या मुझे फिर उसके बाद मैं गिल्टी फील करती हूँ. दैट्स द रीजन ऑफ माई गिल्ट. एक्सक्यूज मी. एंड इट इज़ अ वेरी लॉन्ग लास्टिंग थिंग. ये अगर जो गिल्ट है, टॉक्सिक गिल्ट, अगर ये लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है तो इट क्रिएट्स योर सेल्फ एस्टीम. यू फील, यू सेल्फ सैबोटाज योर सेल्फ, राइट, कि नहीं, दिस इज कि आई एम नॉट अ गुड पर्सन, राइट. यू कीप ऑन डाउटिंग योर सेल्फ कि मैं कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ ये, right? So all these things happens, and in the worst case, in even you start punishing yourself. आप अपने आप को पनिश करने लग जाते हो कि मैं ये कैसे कर सकती थी. और जनरली इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ छोटा सा. जब भी अगर आप याद करें, अपना चाइल्डहुड याद करेंगे, तो व्हेन यू वर अ किड एंड यू हैव सीन योर पेरेंट्स fighting in front of you, most of the times what happens, the child, the innocent child feels that my parents are fighting because of me. मे बी वो कुछ इशू होगा, बच्चे को लेके डिस्कशन कर रहे होंगे, कुछ आर्ग्यूमेंट कर रहे होंगे, लेकिन बच्चा जो है वो क्रिएट कर लेता है उस बिलीफ को कि माई पेरेंट्स ऑलवेज फाइट बिकॉज ऑफ मी. एंड ड्यूरिंग his or her whole life he or she keeps on thinking कि मेरी वजह से ऐसा होता है, I am the culprit, my parents fight because of me. And this is the negative, extreme negative downside of having a guilt, right? So emotionally and physically भी हम लोग weak हो जाते हैं. If I talk about a few of the physical symptoms that how you can identify your guilt, so maybe the migraines are the best example of having guilt. The lower back pain, it is the major area in your body that shows that you are going through guilt trip, if I use this word. So backache, lower backache, anxiety, most of the times if we are talking about women, so crying, frustration, always shouting, screaming, overthinking, stress level increases, the cortisol hormone level increases, you are going through many digestive issues. Hi Devika, thank you for joining in. सो डाइजेस्टिव इश्यूज होने लग जाते हैं बहुत सारे, आपका इम्यून सिस्टम वीकेंड हो जाता है. एंड दीज आर सम ऑफ द इंडिकेटर्स दैट यू आर गोइंग थ्रू सम गिल्ट. सो ट्राई टू आइडेंटिफाई द रूट कॉज, दैट व्हाट इज हैपनिंग अराउंड मी, दैट आई विल डिस्कस इन डिटेल इन few minutes later, that how we can cope up with this guilt. So if I discuss about a few of the psychological symptoms, that how you can find out that you are going through guilt, because most of the times what happens, हमें पता ही नहीं होता है, we are not aware कि हम guilt की वजह से ऐसा feel कर रहे हैं. That's why I'm sharing these all symptoms with you. Okay, so few of the psychological symptoms are that you have recurring obsessive thoughts. ओवर थिंकिंग, एक ही थॉट बार बार आ रहा है, ऐसा क्यों हुआ, क्या हो सकता था, क्या कर सकती थी. दीज आर द रिकरिंग थॉट्स जो आपको परेशान कर रहे हैं बहुत ज़्यादा. ठीक है, स्लीप डिसऑर्डर्स हो सकते हैं आपको, एक्सट्रीमली आप सेंसिटिव हो सकते हो टू द इफेक्ट्स ऑफ एवरी एक्शन. कुछ भी एक्शन आप लेते हो तो यू बिकम एक्सट्रीमली सेंसिटिव कि मेरे ये करने से किसी को इशू तो नहीं हो जाएगा, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी. Right, you try to avoid your emotions. You have that self-sabotaging behavior for yourself कि मैं बहुत बुरी हूँ, मैं बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ, मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ, मैं एक अच्छी बेटी नहीं हूँ, मैं एक अच्छी वाइफ नहीं हूँ. कभी ना कभी तो आप लोगों के माइंड में भी ये थॉट्स आए ही होंगे जरूर. राइट, सो लो सेल्फ एस्टीम हो जाती है, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है हमारा, और हम फील करते हैं कि आई एम नॉट डिजर्वेबल फॉर दैट, अंडर डिजर्विंग.
खुद ही हम अपनी वैल्यू को अंडररेट कर लेते हैं बहुत ज़्यादा. Then one more significant indicator is that you always put others before yourself. और ये तो हम लोगों में होता ही है कि पहले मैं बच्चे को देख लूँ, पहले मैं हस्बैंड को देख लूँ, मैं इन लॉज का कर लूँ, मैं इसका कर लूँ, मैं फ्रेंड्स को देख लूँ, मैं सबको खुश कर लूँ. तो यू ऑलवेज पुट अदर्स बिफोर योरसेल्फ. दैट इज वन ऑफ द profound indicator that you are having that guilt of something. Guilt have various dimensions that I will discuss later, but कुछ तो है, किसी भी चीज की guilt तो है कहीं ना कहीं. So what do you think that what can be the reasons of your guilt? Can anyone please write down here in the comment box what could be the possible reasons that why do we feel guilty? I would love to know the answers from you. Okay, so there are majorly, what I have figured out, that there are majorly 3 reasons that why do you feel guilty. ज़्यादातर उसी में ही सारी कैटेगरीज फॉल करती हैं, बट मेजरली 3 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज दैट belief. You always have a belief, rather I would say a limiting belief inside you, जो आपको रोकता है किसी एक्शन को करने से या ना करने से. So guilt is always about should plus action or non-action. So this is a formula that we can form related to guilt, that guilt is equal to should. Should, check your vocabulary. कहाँ पर आप हमेशा यूज करती हैं should. मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, एक लेडी को ऐसा करना चाहिए, एक वाइफ को ऐसा नहीं करना चाहिए, एक मदर को ऐसा ही करना चाहिए. ये जब भी चाहिए वर्ड यूज होता है. Whenever you use this should word for taking an action or not taking an action, that is your belief. So always keep a check on your vocabulary कि ये belief की वजह से तो नहीं मुझे कहीं ऐसा हो रहा है. और beliefs कई बार क्या होते हैं, most of the times unrealistic beliefs होते हैं हमारे, जो हम कहीं ना कहीं से पिक कर लेते हैं. मेजरली हम चाइल्डहुड से लेते हैं. हमारे पेरेंट्स, हमारा एनवायरनमेंट, हमारा एजुकेशन सिस्टम, टीचर्स, सिबलिंग्स, फैमिली, फ्रेंड्स, इन्हीं सब से हम अपने सारे बिलीव्स जो होते हैं मेजरली वो हम पिक करते हैं. सोसाइटी हमारे लिए कन्वेंशनल रूल्स क्रिएट करती है. वो उन रूल्स को अगर हम फॉलो नहीं कर पाते हैं या उसके अगेंस्ट चले जाते हैं कभी, दैट इज द टाइम व्हेन वी फील गिल्टी. बिकॉज कुछ हमने सेट कर रखा हुआ है नॉर्म्स कि आइडियल, ये आइडियल वर्ड आ जाता है ना, जहाँ पर ideal mother-in-law, ideal daughter-in-law, ideal daughter, ideal mother, ideal wife. That is the time when we go into the frequent guilt trips. कि no, daughter-in-law ऐसा कुछ नहीं कर सकती, मदर एक ऐसी नहीं कर सकती, छोटे बच्चे हैं तो आपको बच्चों को ही देखना पड़ेगा. You can't go and work or you start your business. लोग क्या कहेंगे, और अगर मैं करती हूँ तो मैं गिल्ट में चली जाती हूँ कि मैं अपने बच्चों को अवॉइड कर रही हूँ, मे बी मैं अपने हस्बैंड को अटेंशन नहीं दे रही हूँ, या मे बी मैं अपनी मदर इन लॉ की जो डिमांड्स और एक्सपेक्टेशंस हैं मैं उनको पूरा नहीं कर रही हूँ. दीज आर वेरियस एग्जाम्पल्स दैट आई एम गिविंग यू टू रिलेट फ्रॉम द रियल लाइफ सिचुएशन, राइट. सो फर्स्ट मेजर रीजन इज बिलीफ. सो चेक ऑन दैट. सेकेंड इज you feel that you have caused harm or injury to someone. ये आप अनकॉन्शियसली कहीं ना कहीं से ऐसा आप पिक कर लेते हैं एनवायरनमेंट में से कि आपने किसी के साथ बहुत गलत कर दिया है, इसीलिए वो इतने परेशान हैं मेरी वजह से. लेट्स से आई गिव यू एन एग्जांपल फ्रॉम वन ऑफ माय क्लाइंट्स.
वो कहीं उसको कहीं ट्रिप पर जाना था एंड शी आस्क्ड हर सिस्टर टू अकम्पनी हर एंड हर सिस्टर वॉज सेइंग नहीं नहीं मुझे बहुत काम है, मैं नहीं जा सकती हूँ, तुम चले जाओ. बट स्टिल शी इंसिस्टेड एंड शी टुक हर अलॉन्ग विथ हर. एंड रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया एंड ड्यू टू दैट एक्सीडेंट शी लॉस्ट हर सिस्टर. दैट वॉज अ वेरी सैड मोमेंट फॉर हर. बट पूरी लाइफ शी वॉज इन दैट गिल्ट कि मेरी वजह से ऐसा हुआ. मैंने उसको कहा था कि मेरे साथ चल, मेरा जीना मुश्किल हो रहा है, मैं उसमें आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट अ गुड पर्सन. शी हैव स्मॉल किड्स एट हर होम, शी हैव अ हस्बैंड. अब वो कैसे होगा, कैसे काम चलेगा. एंड शी वॉज जस्ट कीप ऑन ब्लेमिंग हर कि मेरी वजह से ऐसा हुआ है. राइट. तो यू हैव क्रिएटेड दैट थॉट. कंसिस्टेंट थॉट्स आते रहते हैं आपको. यू बिकम ऑब्सेसिव एंड इम्पल्सिव कि दिस हैड हैपेंड बिकॉज ऑफ मी. राइट. सो दिस इज वन ऑफ द major reason that you go into the guilt, because what you feel that something has happened in disalignment of your values. कुछ आपके अंदर कोर वैल्यूज थी, आपकी इंट्रिंसिक वैल्यूज थी, उसके अगेंस्ट आपने कुछ कर दिया है. द एग्जाम्पल विच आई गेव, इट वॉज अ वेरी बिग एग्जाम्पल टू गिव, ह्यूज एग्जाम्पल टू गिव. बट घर में भी छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं कि वी फील कि नहीं ये तो मेरी कोर वैल्यूज के अगेंस्ट है. एंड इफ स्टिल यू डू दैट, यू गो इन टू द गिल्ट. राइट. सो द थर्ड मेजर रीजन इज ड्यू टू पास्ट एक्सपीरियंस. यू क्रिएट एन एंकर विथ यू. कुछ ऐसा कभी पास्ट में हुआ था, उस पर्टिकुलर इंसिडेंट्स को लेकर यू हैव क्रिएटेड एन एंकर. एंड जब जब फ्यूचर में ऐसा होता है, यू फील गिल्टी अबाउट इट कि ये तब मेरी वजह से हुआ था, इसलिए आज भी मेरी वजह से ही हो रहा है. जस्ट गिव मी अ यस और नो इफ यू फील कि ये इन तीनों में से कोई एक रीजन है. आपके साथ भी कोई ना कोई रीजन इन तीनों में से ही होगा. सो आई वुड लव टू सी योर yeses and no's. Yes, any guilt stops you from doing anything. Hi Devika. So we quickly discussed that what are the three major reasons of guilt. Okay, so now we'll move ahead. So we will discuss that what are some of the kinds of guilt that women have, because this is our theme. यही हमारी थीम है, इसी पे मैं पूरी सीरीज क्रिएट करूंगी. तो आज मैं सिर्फ एक ग्लिम्स दूंगी कि what are the major categories जहाँ पर फीमेल्स जो विमेन जो होती हैं वो they feel guilty about themselves. If you fall into one of the categories, stay tuned to the series for 8 to 10 sessions. Thank you so much. Thank you so much for all the love and the heart you all are pouring upon me. Thank you so much. So this is yes. So I'll quickly give you some few topics or the hints that I will be discussing in the further session. Yes. So first is, women especially have this major guilt, the number one guilt that have, that I'm not a good person. I'm not a good person. I'm not a good wife. I'm not a good mother. I'm not a good daughter, not a good sister, not a good employee. So this is one of the kind of guilt that women generally have. The next is women have guilt on spending on themselves, for spending on themselves. अपने ऊपर पैसा खर्च नहीं करना चाहते. I don't know, they must be having some money blocks that we will discuss in the money sessions, but कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं limiting beliefs हैं उनके अंदर, जिसकी वजह से, because it's not, and I will not say that it's their fault. Societal conditioning
इज द रीजन, वो अपब्रिंगिंग जो उनकी हुई है, जिस माहौल में वो पली बड़ी हैं, उनको यही सिखाया गया है, राइट? मनी से दूर रखा गया है उनको. सो दैट्स वाई, बिकॉज वॉट दे फील कि नहीं मैं अपने ऊपर पैसा नहीं खर्च कर सकती, माई हस्बैंड कम्स फर्स्ट, माई किड्स कम्स फर्स्ट, पहले सबका हो जाए, बचेगा तो मैं अपना देखूंगी, राइट? then they have a guilt of not having a good lifestyle, of their bad habits, their looks, their image, their health, right, etc. Then they have a guilt of, this is also a very major kind of guilt जो majority of the times women have, to say a no or set boundaries with someone, especially in the close relationships. वो ना नहीं बोल पाती हैं, और अगर बोल भी देती हैं, हिम्मत करके अगर उन्होंने बोल भी दिया, still they feel guilty, right? Then the another major guilt comes, that is mom guilt. मेरे अंदर भी बहुत थी. जब मैंने स्टार्ट किया था, I was into deep mom guilt कि मेरे बच्चे इग्नोर नहीं होने चाहिए, निगलेक्ट ना हो जाए, मैं कैसे काम कर सकती हूँ, मैं कैसे 2-2 घंटे तक मीटिंग्स अटेंड कर सकती हूँ, मेरे बच्चे क्या खाएंगे, मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स व्हेन विमेन गो इनटू दिस काइंड ऑफ गिल्ट, वो प्रायोरिटाइज नहीं करती हैं अपने वर्क को, वो फैमिली को या अपने बच्चों को ही प्रायोरिटाइज करती हैं, एंड दे टेंड टू गिव अप टू देयर ड्रीम्स बिकॉज ऑफ दिस गिल्ट, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स. बिकॉज एक रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो विमेन जो होती हैं, वो जैसे ही बेबी प्लान करती हैं या बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद विमेन जॉब्स, बहुत सारी विमेन जॉब्स छोड़ देती हैं. इट्स नॉट अबाउट द हस्बैंड नहीं है, लेकिन विमेन छोड़ देती हैं बिकॉज ऑफ दैट सेम गिल्ट. हाउ कैन आई लीव माई स्मॉल किड विथ समवन? Yes, thank you so much for acknowledging this. Then another kind of guilt comes for not keeping everyone happy. मैं सबको खुश नहीं रख सकती, मैं इसको खुश नहीं कर पाती, मैं उसको खुश नहीं कर पाती, मेरी इन-लॉज खुश नहीं रहते, मेरे हस्बैंड मुझसे दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, मैं सबको खुश नहीं कर सकती. एंड आई एम नॉट अ गुड पर्सन. मैं एक अच्छी वाइफ नहीं हूँ, मैं एक अच्छी मदर नहीं हूँ. अगेन दिस होल विशियस सर्कल, you fall into this trap, right? And these are the major reasons that a woman don't follow her dreams. अपने dreams को follow नहीं कर पाती हैं बहुत सारी ladies. करना बहुत कुछ चाहती हैं, बहुत passionate है करने के लिए, but because due to this guilt वो अपने आप को रोक लेती है. So we have to overcome this thing. Next is once again बहुत बड़ी चीज, सेल्फ केयर, सेल्फ लव, प्रायोरिटाइजिंग माई सेल्फ ओवर अदर्स. ये करना अगर उन्होंने कर लिया, 1 घंटे के लिए भी अगर वो कहीं चली गई, ब्यूटी पार्लर चली गई या शॉपिंग चली गई, वहां से आकर भी उनको इतना गिल्ट होता है कि मैं कैसे कर सकती थी ये, मेरे बच्चे छोटे हैं मेरे घर पे, मुझे खाना बनाना है जाके, मुझे ये करना था, एंड हाउ कुड आई डू दैट, मैंने कैसे किया, क्यों किया, मुझे नहीं करना चाहिए था. So this happens. Another is for following your passion, that already I discussed with you, कि मैं अगर अपना पैशन फॉलो करती हूँ या मैं अपना ड्रीम फॉलो करती हूँ या मेरा लाइफ का कुछ पर्पस है या मुझे शायद कोई साइड हसल अपना स्टार्ट करना है, उसमें भी वो गिल्ट में चली जाती है कि मैं कैसे कर सकती हूँ, और कर लेती हैं तो मैंने क्यों किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, राइट? Then for more, there are many other categories of having guilt within women, जो हम बाद में discuss करेंगे further sessions में. So just to sum up all of the things that we have discussed, what is guilt, what are the types of guilt, what are the physical symptoms that our body shows, what are the psychological symptoms our body shows. Now what are the kinds of guilt women go through,
right? Mel Robbins says that guilt is always the disguise for love. Guilt is always disguise for love. If you are going into guilt, अगर आप गिल्ट में जा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप लव डिप्राइव्ड हो, कहीं ना कहीं आपको एक अंदर से वो सेल्फ लव की कमी है, या मे बी आप किसी और से लव सीक कर रहे हो, आप बाहर से लव सीक कर रहे हो. हाय अनुज, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. यस, सो वी आर सीकिंग लव फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड or maybe from ourselves. That's the reason that we tend to fall into this category of guilt, right? And just try to find out the root cause, कि root cause क्या है मेरे guilt का, कैसे हम उसको find out कर सकते हैं, कैसे हम उसको overcome कर सकते हैं, that we will discuss. बट जस्ट टू, बिकॉज कहीं ना कहीं मेरे अंदर का जो चाइल्ड है, इनर चाइल्ड है, वो वुंडेड है. कहीं कहीं कुछ मेरे साथ ऐसा हुआ है जो मैंने पास्ट में अपने साथ इग्नोर कर दिया है उस इमोशन को. दैट्स व्हाई आई एम हैविंग दीज फ्रीक्वेंट गिल्ट ट्रिप्स, राइट? तो उस इनर चाइल्ड को हमें, वुंडेड इनर चाइल्ड को हील करना है. देयर आर फ्यू क्विक मेथड्स जो मैं आपको अभी पॉइंटर्स के फॉर्म में बता देती हूँ, बट डिटेल में हम जाएंगे इसमें बाद में आगे. सो फर्स्ट, आइडेंटिफाई द रूट कॉज. आइडेंटिफाई एंड एक्नॉलेज द रूट कॉज. ये हो क्यों रहा है मेरे साथ, क्या रीजन हो सकता है कि किस वजह से मैं गिल्टी फील कर रही हूँ. जरूरत पड़े तो आप अपने चाइल्डहुड में जाकर भी देख सकते हैं कि क्या मैंने फर्स्ट टाइम जब कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ था मेरे साथ, तब मैंने कैसा फील किया था. मे बी उसकी वजह से मुझे ऐसा हुआ, या मेरी मदर के साथ भी ऐसा हुआ था, तो मैंने उस बिलीफ को कैच कर लिया और एक एंकर क्रिएट कर लिया है कि मेरे साथ भी ऐसा ही होगा, राइट? द सेकेंड कैन बी टेक प्रोफेशनल हेल्प. अगर कभी कभी ऐसा होता है हम खुद से नहीं कर सकते हैं तो हम प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं. वी हैव काउंसलर्स, कोचेस, ट्रेनर्स, हीलर्स, जिनकी हम हेल्प ले सकते हैं अपने इस रूट कॉज को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि कई बार हमको खुद से समझ में नहीं आता कि क्यों हो रहा है ये मेरे साथ. देयर आर वेरियस मेथड्स, टूल्स एंड टेक्निक्स दैट हाउ यू कैन डिस्कवर दैट थिंग. Okay, then the other thing can be journaling, meditation. Try to write down जो भी थॉट्स आ रहे हैं आपके माइंड में. आस्क क्वेश्चंस, फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस टू योरसेल्फ. क्यों हो रहा है ये मेरे साथ, इसका क्या कारण है, ये ऐसा कैसे हो सकता है, उस समय क्या हुआ था. आस्क क्वेश्चंस, बिकम योर सेल्फ कोच, इनर कोच. ओके, जर्नलिंग करने से हमें बहुत सारे आंसर्स मिल जाते हैं एंड वी फील रिलीव्ड. अच्छा फील होने लगता है लिखने के बाद हमें. और कभी कभी पॉसिबिलिटी होती है लिखते लिखते हमको आंसर्स भी मिल जाते हैं एंड वी कैन टेक फर्दर एक्शंस रिलेटेड टू दैट. ओके, देन इनर वर्क इज डन, देन यू कैन टेक प्रोफेशनल हेल्प. ट्राई टू जर्नल, ट्राई टू मेडिटेट. मेडिटेशन में जस्ट सिट इन साइलेंस. मेडिटेशन इज अ वेरी heavy word used these days. It's a very glorious word, so it has been glorified, but बहुत बड़ी बात नहीं है. सिर्फ आपको साइलेंस में बैठना है थोड़ी देर और अपने आप से पूछना है, अपने थॉट्स को वॉच करना है कि क्या थॉट्स आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं. जस्ट ऑब्जर्व, सिट इन साइलेंस. देन uplift your vibration. How can you uplift your vibration? Surround yourself in the company of positive people. अच्छे लोगों के साथ आप बैठो, अच्छा म्यूजिक सुनो, अपलिफ्ट करो अपनी एनर्जी को. Excuse me. Then you can come out of that guilt. क्योंकि कभी कभी हम नेगेटिव मोड में चले जाते हैं, उसकी वजह से ऐसा हो जाता है कि हम वही थॉट्स बार बार आते रहते हैं. तो वी हैव टू अपलिफ्ट अवर वाइब्रेशन एंड अवर एनर्जी. देन ओनली यू विल बी एबल टू अट्रैक्ट पॉजिटिविटी, राइट? एंड चेंज योर इंटरनल स्टोरी. बिलीव्स क्या है हमारे, एक माइंड में हमारी दी हुई स्टोरी है, उसको स्टोरी को हम कैसे चेंज कर सकते हैं.
एक दूसरी नई स्टोरी देकर, कोई एक ऐसी स्टोरी देकर जो काफी एम्पावरिंग है। एम्पावरिंग स्टोरी हम किसी उसको एक बहुत अच्छी, जैसे कि मैं एक अच्छी, लेट्स से मैंने, मेरे अंदर ये बिलीफ है कि मैं अगर काम करती हूँ तो मैं एक अच्छी मदर नहीं हूँ। वी कैन चेंज दिस स्टोरी। मैं काम करती हूँ, दिस इज अ फैक्ट, बट मैं काम करती हूँ इसलिए मैं अच्छी मदर नहीं हूँ, दिस इज अ बिलीफ एंड दिस इज अ स्टोरी यू हैव गिवन इन योर माइंड, और मे बी सोसाइटी ने आपको उस तरीके से सोचने के लिए मजबूर किया हुआ है। सो जस्ट गिव एन एम्पावरिंग स्टोरी। अगर मैं काम करती हूँ तो आई एम एन एम्पावर्ड वुमेन, आई एम अ कॉन्फिडेंट वुमेन। मेरे बच्चे भी मुझे देखकर अच्छा सोचेंगे, मेरे जैसा बनने की कोशिश करेंगे। तो आई एम बिकमिंग अ गुड रोल मॉडल फॉर देम, कि मैं कितने अच्छे से वर्क लाइफ बैलेंस में मेंटेन कर रही हूँ, मैं घर भी संभालती हूँ, बच्चे भी देखती हूँ और मैं काम भी करती हूँ। सो जस्ट जैसे ही आप अपनी स्टोरी चेंज करेंगे ना, यू विल इमीडिएटली आप बाहर आ जाओगे गिल्ट से। एक्सक्यूज मी। देन फॉरगिव योरसेल्फ। कुछ ना कुछ, majority of the time what happens, we women are very harsh to ourselves. थोड़ा सा काइंडनेस, थोड़ा सा कंपैशन हम दूसरों के लिए तो दिखाते हैं, बट अपने लिए भी दिखाना चाहिए हमें। सो जस्ट फॉरगिव योरसेल्फ। जो कुछ भी किया है अभी तक, जो कुछ भी किया है उसके लिए माफ कर दो अपने आप को। जरूरत पड़े तो फॉरगिव अदर्स ऑल्सो। कहीं ना कहीं किसी ना किसी से कुछ मेरा कार्मिक अकाउंट है, कुछ एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, just forgive them also for your sake, अपनी भलाई के लिए। It's not about कि मैं भूल जाऊं किसी ने मेरे साथ क्या किया या मैंने खुद के साथ क्या किया, but just forgive yourself. जो हुआ वो हो गया। Now what I can do? What is in my control now? So think like this. But what about, Priya is asking that, but what about when damage has done? Yes Priya, damage has done, but you have to accept this. ये आपको accept करना पड़ेगा कि अब जो हो चुका है वो हो चुका है। अब मैं वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। I can't go back into my past and control the things. So accept the fact, forgive yourself or the other person involved and just move on. आगे बढ़ो, देखो कि क्या पॉसिबिलिटी है फर्दर। जो भी हुआ आपकी वजह से नहीं हुआ। एवरीथिंग वॉज प्लान्ड। यूनिवर्सल प्लानिंग होती है। आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड विथ यू, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बस मैं एक जनरल वो बता रही हूँ कि यूनिवर्सल प्लानिंग है, बिकॉज गॉड इज बिगर देन यू। यू आर नॉट गॉड, यू आर अ ह्यूमन बीइंग एंड ह्यूमन बीइंग कैन मेक मिस्टेक्स। सो जस्ट फॉरगिव योरसेल्फ एंड अदर्स। मिस्टेक्स सब कर सकते हैं, अलाउड है। अगर मिस्टेक्स नहीं कर सकते तो हम फिर भगवान होते ना, यूनिवर्स होते, इतनी पावर्स होती है हमारे अंदर, बट वो नहीं है। हम ह्यूमंस हैं, हमें अलाउड है ये सब करना। हाय फरीदा, हाय अल्पा, हाय तेजल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। हाय स्नेहा। मनिका इज सेइंग गिल्ट टाइम पे हम पीपल प्लीजर बन जाते हैं। एग्जैक्टली, वी कीप ऑन ओवर गिविंग एंड वी कीप ऑन ओवर डूइंग, जिसके लिए हम कुछ भी प्राइस पे कर सकते हैं। कभी कभी हम अब्यूज भी हैंडल कर लेते हैं, कभी कभी फिजिकल अब्यूज भी कर लेते हैं और इमोशनल भी कर लेते हैं। यस, आई कैन सी सो मेनी yeses डाउन हियर, थैंक यू सो मच। Yes, thank you. Hi Jyoti. Hello everyone. Sneha is saying can't connect. Hi Tushar, thank you for joining. Hello. I can see so many people. I think I missed most of the comments. Hi everyone. Yeah, so we were discussing कि हम अपने गिल्ट को कैसे ओवरकम कर सकते हैं। देन फॉरगिव योरसेल्फ, देन चेंज योर इंटरनल स्टोरी। सारा दिन हम क्या बोलते रहते हैं? सेल्फ टॉक, इनर सेल्फ टॉक। चेंज दैट। मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर पाऊंगी, मैं वो नहीं कर पाऊंगी।
वाई वी आर यूजिंग दीज काइंड ऑफ वर्ड्स? नहीं, क्यों नहीं कर सकती? आई कैन डू दैट. एंड द प्रॉब्लम इज कि हम अनकॉन्शियसली हमारी वोकैबुलरी जो होती है उसको हम ऐसे यूज कर लेते हैं, वी कांट डू एनीथिंग. सो जस्ट कीप अ चेक on your self-talk, change your internal story and challenge your beliefs. ऐसा कैसे हो सकता है? तब हुआ होगा, बट मेरी वजह से तो नहीं हुआ. कभी उस जमाने में किसी ने कुछ किया होगा, तब ऐसा ऐसा हुआ होगा. बट अभी आई एम नॉट एट फॉल्ट, मेरी गलती नहीं है. थैंक यू स्नेहा सो मच, थैंक यू सो मच. Do others or elders go in guilt for living? So why do we women always have to be in guilt always? We women are conditioned like this, dear. Now it's the time. It's use your wisdom to change yourself now. हमारा बचपन ऐसा, हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी रही है. आई एम सो सॉरी. हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है कि हमें गिल्टी फील करवाया जाता है, एंड वी फॉल इनटू दैट trap very easily, very conveniently. So just work on yourself. Take 100% responsibility of your life. I am responsible for my life. I will take my decisions. और जो कर रही हूँ मैं अच्छा करूँगी. जो किया है मैंने वो भी अच्छा ही किया है अभी तक, और स्टिल मुझे अगर लगता है कि मैंने अच्छा नहीं किया है, सो नाउ आई कांट डू एनीथिंग. आई कांट गो बैक इन टू द पास्ट. तो अब मुझे आगे के लिए सोचना है कि मैं कैसे अपनी उस मिस्टेक को ठीक कर सकती हूँ. मैं अगर बच्चों को टाइम नहीं दे पा रही हूँ, मेरी बेटी आती है और मुझसे कहती है मम्मा प्लीज़ मेरी ड्राइंग देखो, एंड आई एम इन टू बिटवीन मिडिल ऑफ समथिंग. तो रैदर देन जस्ट गोइंग इन टू द गिल्ट कि मैं उसको टाइम नहीं दे पा रही हूँ, मैं प्रिफर करती हूँ, उसको बोलती हूँ बेटा बस 10 मिनट्स आप रुक जाओ, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे अच्छे से कि आपने क्या बनाया है और क्या ड्रॉ किया है. हाय गौरी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन. सो इस तरह से अगर हम अपनी स्टोरी को चेंज कर लें, खुद को एम्पावर कर लें, अपनी सेल्फ एस्टीम को रेज करें, अपने कॉन्फिडेंस को रेज करें, वी कैन ईजीली हैंडल दिस गिल्ट. आई होप whatever I have discussed up until now, you all feel कि आप लोगों को लगा कि this is something, this is a topic that no one talks about it. ये होता सबको है प्रॉब्लम, बट कोई इस पर बात नहीं करना चाहता. सो दैट्स वाई आई थॉट कि मुझे ये टॉपिक उठाना चाहिए और इसकी अवेयरनेस मुझे स्प्रेड करनी है, बिकॉज मैं भी कभी उसी गिल्ट उसी फ्रीक्वेंसी में थी, गिल्ट ट्रिप्स की. आई एम नॉट अ गुड मदर, अरे मैं ये नहीं कर सकती, अरे मैं वो नहीं कर सकती, मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाती, मैं ऐसी क्यों हूँ, मेरी बॉडी ऐसी क्यों है. आई वॉज नॉट हैप्पी. So I hope you will keep on enjoying the further sessions. So stay tuned to the complete series. Before signing off, if you have any questions or doubts regarding this series, feel free to ask. I'll wait for 2 more minutes and then I'll leave. How was the session? Please give me some feedbacks. कैसा लगा आप लोगों को? इस टॉपिक के बारे में आप लोगों के क्या व्यूज़ हैं? अगर कोई स्पेशल क्वेश्चन है गिल्ट से रिलेटेड, फील फ्री टू आस्क. आई मेक श्योर कि मैं उसको मेरे अपकमिंग इंस्टा लाइव्स में ज़रूर सॉल्व करूँगी. सो आई एम वेटिंग फॉर फ्यू क्वेश्चंस. लेट्स बी द चेंज. यस नेहा, दैट्स माई गर्ल. थैंक यू प्रिया. मुझे खुशी हुई कि आपको अच्छा लगा ये. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग. थैंक यू. अगर कुछ स्टिल इफ यू हैव सम क्वेश्चंस यू कैन नोट इट डाउन, और या फिर मैं अभी जब इसको सेव करूँगी इसको लाइव को, उसके बाद भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे शेयर कर सकते हैं दैट इफ यू हैव पर्टिकुलर क्वेश्चन रिलेटेड टू योर गिल्ट. थैंक यू एवरीवन. टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड. बाय बाय.